السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عبداللہ آج اس پروگرام کا ناظم ہونے کی حیثیت سے آج بروز اتوار 28 مئی 2023 1444 ہجری 7 ذوالقعدہ کو آج کے ہمارے مقرر فضیلت الشیخ نور الاسلام محمدی صاحب کا اور ادارے میں موجود آپ تمام مرد و خواتین کا میں تہہ دل سے آج اس پروگرام میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ اب میں آپ کو الف اللسان اسلامک فاؤنڈیشن کا مختصر سا تعارف دینا چاہتا ہوں۔ الف اللسان اسلامک فاؤنڈیشن ایک دینی ادارہ ہے جس میں دینی بیانات، اصلاحی بیانات، اسلامک ورکشاپ، اسلامک ٹریننگ پروگرام، اسلامک کڈس کیمپ، اسلامک کویشچن آنسرز اور انٹریکٹیو سیشن اور اسی طریقے سے فری قرآن اور اسلامک لٹریچر کوریئر کے ذریعے سارے ہندوستان میں نان مسلم بھائیوں کو بھیجا جاتا ہے الحمدللہ۔ الف ٹی وی کے لیے علماء کی دینی بیانات کے ریکارڈنگز کی جاتے ہیں۔ شرعی سوالات یا مسائل آسک این لنک کے مخصوص نمبر پر آپ تمام سوالات کر سکتے ہیں، جس کا واٹس اپ نمبر ہے 9966367600۔ انشاءاللہ آپ تمام کو تسلی بخش جوابات حاصل ہوں گے۔ الف اللسان اسلامک فاؤنڈیشن کے شعبہ خواتین محترمہ بنت احمد ہے۔ آپ LLB کے طالب علم ہیں، آپ کی نگرانی میں ایکٹیویٹیز انجام دیے جاتے ہیں۔ محترمہ بنت احمد ہر روز 2:30 PM سے 3 PM تک 30 منٹس کی آپ کی آن لائن اسلامک کلاس ہوتی ہیں۔ اگر آپ تمام اپنے گھر کے خواتین کو ان کلاسز میں جوائن کرانا چاہتے ہیں تو مزید تفصیلات کے لیے 8125303208 پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ الف ٹرسٹ کے تحت ہر منگل ریشن ڈسٹریبیوشن، ہر جمعہ فوڈ ڈسٹریبیوشن، اولڈ ایج ہوم میں لنچ ارینجمنٹ، گورنمنٹ چلڈرن ہاسپٹلس میں فروٹس ڈسٹریبیوشن اور ہر سرما کے موسم میں بلینکٹس ڈسٹریبیوشن کیا جاتا ہے الحمدللہ۔ خانس ایڈوکیٹس اینڈ ایسوسیٹس کی جانب سے لیگل اویئرنیس پروگرام، فری میٹریمونیل کاؤنسلنگ اور لیگل گائیڈنس لاء اسٹوڈنٹس کیا جاتا ہے۔ اگر لاء سے متعلق آپ تمام ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ایڈوکیٹ نظام صاحب کی ویڈیوز موجود ہے، آپ تمام دیکھ سکتے ہیں۔ اب میں آج کے ہمارے مقرر فضیلت الشیخ نور الاسلام محمدی صاحب کا مختصر سا تعارف آپ تمام کو دینا چاہتا ہوں۔ فضیلت الشیخ نور الاسلام محمدی صاحب نے عالمیت اور فضیلت کی تعلیم جامعہ محمدیہ منصورہ مالیگاؤں سے فراغت حاصل کیے ہیں اپنے 2002 میں، اور 2002 اور 2007 تک آپ اورنگ آباد مہاراشٹرا میں امام و خطیب کی حیثیت سے خدمت انجام دیے ہیں، اور دعوتی خدمات میں بھی شیخ وہاں پر آگے تھے ماشاءاللہ۔ اور اس کے بعد آپ نے قطر کے لیے 2007 سے 2018 تک قطر میں تھے آپ ماشاءاللہ، وہاں پر بھی آپ امام و خطیب کی حیثیت سے خدمت انجام دے رہے ہیں، اور آپ وہاں پر بھی دعوتی خدمت انجام دے چکے ہیں۔ اور اب آپ فی الحال بہار کشن گنج میں نور انٹرنیشنل اسکول کے ڈائریکٹر ہیں آپ، اور شعبہ حفظ مدرسۃ الدار الارقام التحفظ القرآن میں آپ پریزیڈنٹ کی حیثیت سے خدمت انجام دے رہے ہیں۔ اب میں بنا کسی تاخیر کے آج کے ہمارے مقرر فضیلت الشیخ نور الاسلام محمدی صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ اپنا بیان آغاز کریں بعنوان اسلام میں نماز کا مقام اور غفلتیں، نماز و بے نمازی کا انجام اور حکم۔ فضیلت الشیخ نور الاسلام محمدی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون وقال الله تعالى في موضع آخر قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون سورة المؤمنون وقال النبي صلى الله عليه وسلم ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا كما شغلون عن الصلاة الوسطى۔ تمام قسم کے حمد ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بے شبہ درود و سلام ہو اس ذات مقدسہ مبارکہ پر جو ساری کائنات کے لیے رشد و ہدایت بنا کر کے بھیجے گئے۔
خواتین و حضرات، عزیز دوستو، آج کے اس پروگرام میں جس عنوان کے تحت آپ کے سامنے لفظ کشائی کرنا چاہتا ہوں وہ ہے اس نماز کا اسلام میں مقام کیا ہے اور غفلت نماز اور بے نمازی کا انجام اور حکم کیا ہے۔ محترم حاضرین، آپ تمام لوگوں کو معلوم ہے کہ نماز یہ اسلام کے 5 ارکانوں میں سے ایک عظیم ترین اور اہم ترین رکن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نماز کے بارے میں سورۃ البقرہ کے اندر فرمایا کہ الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، مومنین کی صفات بیان فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر فرمایا کہ مومنین یا مسلمان وہ ہے جو نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز قائم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، اس کے ڈر اور خوف سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق وقت پر ادا کیا جائے، یہ ہے نماز۔ اور یہ نماز اگر اس طریقے سے کوئی پڑھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق، تو پھر ایسی نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں قابل قبول ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ المؤمنون آیت نمبر 1 اور 2 کے اندر فرمایا کہ قد افلح المؤمنون، تحقیق کے فلاح پا گئے وہ لوگ، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو لوگ نماز میں خشوع خضوع برتتے ہیں۔ نماز کے اندر خشوع خضوع ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے اس طریقے سے ہمیں نماز پڑھنے کی ضرورت ہے۔ نماز کا اسلام کے اندر مقام یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کے اندر ایک حدیث کے اندر بیان فرمائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی دوسرا معبود برحق نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ اس کے بعد نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا اور رمضان مہینے کے روزہ رکھنا اور بیت اللہ شریف کا حج کرنا، یہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ محترم حاضرین، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح سے قرآن کریم کے اندر 82 مقامات پر نماز کو زکوٰۃ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، اور نماز اور زکوٰۃ کی بڑی اہمیت ہے، لیکن میں یہاں پہ نماز کے تعلق سے آپ کے سامنے روشنی ڈالوں گا۔ نماز ایک اتنا اہم ترین رکن ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامہ، قیامت کے دن سب سے پہلے حساب و کتاب نماز کے بارے میں ہوگا۔ اذا صلحت، اگر آپ کی نماز صحیح ہے تو صلح لہ سائر عملی، آپ کا سارا اعمال صحیح ہے۔ وَإِذَا فَسَدَتْ، آپ کی نماز اگر فاسد ہے، نماز اگر بیکار ہے تو فسد لہ سائر عملی، آپ کا سارا اعمال بیکار ہے، سارا اعمال فاسد ہے۔ میرے بھائیوں، یہ وہ حدیث ہے جو صحیح ابن حبان دارقطنی کی روایت کے اندر موجود ہے، اور اس حدیث کو اگر کوئی آدمی سمجھ لے، جان جائے، تو پھر ایسی صورت میں اس کے سامنے دوسرے دلائل نہ رکھا جائے تو بھی اس کی زندگی سدھارنے کے لیے کافی ہے۔ اتنا اہم ترین حدیث ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامہ، قیامت کے دن سب سے پہلے حقوق اللہ میں اگر حساب و کتاب ہوگا تو نماز کے بارے میں ہوگا۔ اذا صلحت، اگر آپ کی نماز صحیح ہے، آپ نے زندگی میں نماز پڑھی ہے، تو بقیہ جتنے بھی اعمال ہیں وہ سارا اعمال اللہ تعالیٰ کے یہاں قابل قبول ہے، اس کا مقام ہے۔ اگر نماز آپ کی زندگی میں نہیں ہے تو فسد لہ سائر عملی، آپ کے کوئی بھی اعمال کی حیثیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، نماز کا بہت بڑا مقام ہے۔ اور جو میں نے سورۃ
माऊन के अंदर 2 आयत करीमा की तिलावत की है, आयत नंबर 4 और आयत नंबर 5 की। उसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि फ़वैलुल लिल मुसल्लीन, फ़वैल वैल जहन्नम है। जहन्नम के अंदर एक वादी है, एक लंबा चौड़ा मैदान है, उसका नाम है वैल। कुछ मुफस्सिरीन कहते हैं कि जहन्नम के अंदर एक गड़ा है जहां पे जहन्नमियों के खून पीप गंदगी जाकर के जमा होता है, उस जगह का नाम है वैल। इस खतरनाक जहन्नम के अंदर किसको डाला जाएगा? जो बेनमाजी है? नहीं मेरे भाइयों, जो बेनमाजी है उनकी बात नहीं हो रही है, बल्कि यहां पे अल्लाह तबारक व तआला ने उन नमाजियों का बयान किया, लिल मुसल्लीन, उन नमाजियों के लिए वाइल जहन्नम है। उन नमाजियों के लिए अल्लाह ताला ने इस खतरनाक जहन्नम को तैयार करके रखा है। अल्लदीन हुम फी सलातिम खाशिऊन, जो नमाज में सुस्ती बरतता है, जो नमाज में मनमानी करता है, काहिली करता है, अपने मन मुताबिक नमाज अदा करता है। कभी 3 वक्त की नमाज पढ़ ली, 2 वक्त की छोड़ दी, कभी 4 वक्त की नमाज पढ़ ली, 1 वक्त की छोड़ दी। ऐसे मनमानी करने वालों के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने वाइल जहन्नम तैयार करके रखा है। मोहतरम हाज़रीन, जिस तरीके से हमें नमाज में सुस्ती नहीं बरतना है, क्योंकि सहाबा किराम अपनी जिंदगी में नमाज के मामले में कभी सुस्ती नहीं बरतते थे। यही वजह है कि सहाबा किराम की जिंदगी जब हम पढ़ते हैं तो हमें हैरान और परेशान हो जाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो सहाबा किराम जो नमाज के लिए मर मिट जाते थे। सहाबा किराम नमाज से बाजमात, नमाज से कभी पीछे नहीं रहते थे। और इसके बारे में हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला की वो रिवायत जो सही मुस्लिम और दीगर सुनन की किताबों में मौजूद है, हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला की फजर की नमाज में दुश्मन हमला करता है और तीर से हमला करके पेट सुराख हो जाता है, बेहोश होकर के नमाज की हालत में गिर पड़ते हैं। और उस हालत में जब होश आता है तो पूछते हैं साहबा से कि क्या मेरी नमाज बाकी है? साहबा किराम कहते हैं कि हाँ नमाज बाकी है। कहते हैं पानी लाओ, पानी लाया जाता है, वजू करते हैं, फिर कहते हैं अल्लाह अकबर, नमाज शुरू करते हैं और फिर उसके बाद बेहोश होकर के गिर पड़ते हैं। फिर वो नमाज के लिए नमाज बाकी है, कहा कि हाँ 1 रिकात बाकी है। फिर वो वजू करते हैं और फिर नमाज शुरू करते हैं और नमाज अदा करने के बाद कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आनी अला सलात, तमाम तारीफ अल्लाह ताला के लिए है जिसने मुझे इस नमाज के अदा करने की तौफीक अता फरमाई। मेरे भाइयों, इस खतरनाक हालत में, इस नाजुक तरीन हालत में जहां पे पेट सुराख हो चुका है और इधर से कुछ खिलाते हैं तो इधर से निकल जाता है, पानी पिलाया जाता है, इधर से निकल जाता है, दूध पिलाया जाता है, इधर से निकल जाता है। उस हालत में, उस नाजुक तरीन हालत में सहाबी नमाज नहीं छोड़ते हैं बल्कि नमाज अदा करते हैं। हजरत ज़ैद इब्न साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत बड़े ताबीन हैं। उनका वाकया है कि वो जाकुनी का वक्त है, खाट पे लेटे हुए हैं, गांव वाले से, महल्ले वाले से कहते हैं कि इहमिलूनी इलल मस्जिद, मुझे मस्जिद लेकर के चलो, मैं मस्जिद जा करके मैं नमाज पढ़ूंगा। गांव वाले समझ जाते हैं कि इनका जाकुनी का वक्त है, मामला बड़ा नाजुक है, ये तो आप यहीं पे नमाज पढ़ लीजिए। उसके बावजूद अपने बेटे से गुस्से के लहजे में कहते हैं या बुनैया इहमिलूनी इलल मस्जिद, ए मेरे बेटे मुझे उठाओ और मुझे मस्जिद लेकर के चलो, मैं मस्जिद जाकर के नमाज अदा करूंगा। मेरे भाइयों, मस्जिद ले जाया जाता है, बेटों ने कंधे में उठाया और ले जाकर के मस्जिद में ले जाकर के मगरिब की नमाज में बैठा दिए और मगरिब की नमाज में आखिरी रकात में, आखिरी सजदे में उसका इंतकाल हो जाता है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कैसे सहाबा किराम थे, कैसे ताबी निज़ाम थे कि जाकुनी के वक्त में इतना नाजुक तरीन हालात में भी वो लोग नमाज से पीछे नहीं रहते थे बल्कि नमाज पाबंदी से जमात के साथ नमाज अदा करते थे। उनका मकाम क्या था, उनका मर्तबा क्या था, ये कुरान और हदीस की रोशनी में वो सहाबा इकराम समझ चुके थे। इसकी वजह से कभी भी सहाबा इकराम नमाज से पीछे नहीं रहते थे। मेरे भाइयों, सही बुखारी की रिवायत है, हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में अगर कोई इसके सहाबी या कोई भी आदमी अगर बीमार होता तो 2 सहाबी के कंधे में हाथ रखते थे और पैर को घसीटते हुए मस्जिद में उसको लाया जाता था और सब में खड़ा होकर के
या तो सब में बैठ करके वो नमाज अदा करते थे, लेकिन घरों के अंदर नमाज नहीं पढ़ते थे, बल्कि जाकर के मस्जिद की के अंदर वो लोग नमाज अदा करते थे। नमाज की कितनी बड़ी अहमियत है इन तमाम रिवायतों से आप समझ सकते हैं, जान सकते हैं कि सहाबा किराम से लेके ताबीन और ताबीन तक कोई भी सहाबा किराम, ताबी निज़ाम और तबी ताबीन नमाज में गफलत बिल्कुल से नहीं बरतते थे। हत्ता कि हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला के दौर खिलाफत में एक आदमी की नमाज फजर कज़ा हो जाती है। इसके बारे में मुहद्दिसीन ने गरचे इस रिवायत को मुतकल्लिम फी रिवायत बतलाया है, लेकिन इसका सही मफ़हूम सही कुरान करीम और सही हदीस के अंदर मौजूद है। अल्लाह के हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने पुलिस से, अपने सुरते से कहते हैं कि इसका नाम लिखो। कहते हैं अमीरुल मोमिनीन, हो सकता है कि पेशाब पैखाना करने की वजह से, किसी मजबूरी की वजह से इनकी नमाज छूट गई है, इनको माफ कर दीजिए। तो पुलिस से सुरता से कहते हैं कि मैं कहता हूं इसका नाम लिखो, अगर इसने दोबारा जमा छोड़ी तो हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला के दुर्रे इसके पीठ को लाल कर देगा। मेरे भाइयों, ये वो नमाज का मकाम था कि साहबा किराम कोई भी बाजमात नमाज से पीछे नहीं रहते थे। अगर रहते थे, अगर हो जाता था कि बाई चांस किसी भी वक्त, तो साहबा किराम इतनी उसको ऊपर सख्ती बरतते थे कि बाजमात नमाज से कोई भी सहाबी या ताबीन पीछे ना रहे। इस तरह से उन लोगों ने कवानीन और ज़वाबित बना के रखे थे। मेरे भाइयों, सिर्फ यही नहीं, हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला के एक सफर के अंदर नमाज कज़ा हो जाती है, और गालिबन नमाज असर के बारे में आता है कि नमाज असर कज़ा हो जाता है तो हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला रोने लगते हैं और आंखों से आंसू जारी हो जाता है और कहते हैं हालाक तो मैं बर्बाद हो गया, मैं हलाक हो गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं और आने के बाद कहते हैं अल्लाह के नबी मैं हलाक व बर्बाद हो गया, अल्लाह के नबी मैं बर्बाद हो चुका हूं। कहते क्या हुआ मेरे साहबी? कहा कि अल्लाह के नबी बर्बाद हो चुका हूं। अरे मेरे साहबी क्या हुआ? कहा कि अल्लाह के नबी असर की नमाज कज़ा हो गई। असर की नमाज कज़ा हो जाए तो साहबा इकराम अपने नफ्स को हलाकत के दियाने पे समझे, साहबा इकराम अपने नफ्स को हलाक समझे। और आज जो हालत उम्मत मुस्लिमा का है, आज देखिए कि जुमा 8 दिन नमाज पढ़ के अपने आप को पक्के मुसलमान कहते हैं। मेरे भाइयों, वो सहाबा किराम एक वक्त की नमाज कज़ा हो जाए, अपने नफ्स को हलाकत के दिहाने पे समझे, अपने नफ्स को बर्बाद समझे, और एक हफ्ता नमाज छोड़ के और जुमा 8 दिन नमाज पढ़ के अपने आप को पक्का सच्चा मुसलमान समझता है। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मलाउल्लाहु बुयूतहुम व कुबूरहुम नारा कमा शगलून अन सलातिल उस्ता। अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोगों के घरों को, उनके कब्रों को जहन्नम के आग से भर दे जिनकी वजह से नमाज असर ताखिर हो गई। मेरे भाइयों, इन बद्दुआओं के मुस्तहिक कौन है? इन बद्दुआओं के मुस्तहिक आप और हम खुद बने हुए हैं। हम नमाज चौक चौराहे में बैठ करके गपबाजी करके हम नमाज को तर्क कर देते हैं। हम शादी ब्याह में नमाज को तर्क कर दे हैं, चाहे आलिम से लेकर के पढ़े लिखे लोग या आवाम या जाहिल कोई भी हो। शादी ब्याह का जब टाइम आता है लोग जाकर के नमाज भूल जाते हैं, कहां नमाज मगरिब गई और कहां नमाज इशा गई, उनको ख्याल नहीं रहता है, बल्कि नमाज सारा के सारा गोल हो जाता है। नमाज का कोई पाबंदी नहीं है। मेरे भाइयों, इन बद्दुआओं के मुस्तहिक कौन है? क्या अल्लाह के नबी फरमाए कि मलाउल्लाहु बुयूतहुम व कुबूरहुम नारा कमा शगलून अन सलातिल उस्ता। अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोगों के कब्रों को, उनके घरों को जहन्नम के आग से भर दे जिनकी वजह से नमाज असर ताखिर हो गई। अब मेरे भाइयों, अगर हमने नमाज असर हो या कोई दूसरी नमाज हो, अगर हमने जानबूझ करके नमाज में कोताही बरती तो इन बद्दुआओं के मुस्तहिक वो आदमी है जो खुद ब खुद मुस्तहिक बनता है। मेरे भाइयों, ये नमाज असर हो या दूसरी नमाज हो, हम जो जानबूझ करके कज़ा कर देते हैं, ये नमाज वो आदमी हकीकत में वो अपने कब्र के अंदर आग जलाया, वो अपने घरों को आग लगा दिया, वो बर्बाद हो चुका, वो जिंदा नहीं है। क्यों? इसलिए कि वो ना अपने नफ्स को हलाक को बर्बाद कर दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही मुस्लिम की रिवायत है, अगर किसी ने असर की नमाज छोड़ी तो उसने क्या किया? उसने वो अहलो अयाल और मालो बर्बाद, सब कुछ बर्बाद हो गया, उसका सब कुछ बर्बाद हो गया। तो मेरे भाइयों, हमने सब कुछ बर्बाद कर दिया नमाज असर को बर्बाद करके। मेरे भाइयों, सिर्फ यही नहीं बल्कि इसके अलावा बहुत सारी ऐसी रिवायतें हैं। हजरत अब्दुल्लाह बिन उम्मे मक्तूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में आता है कि हजरत अब्दुल्लाह बिन
इब्न मक्तूम रजी अल्लाह ताला अन्हु दोनों आंखों के अंधे थे। ये सहाबी थे, दोनों आंखों के अंधे थे, उसके बावजूद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आकर के फतवा पूछते हैं कि अल्लाह के नबी मेरा घर मस्जिद नबवी से बहुत दूर है, अल्लाह के नबी मेरे को मस्जिद नबवी तक लाने वाला कोई नहीं है, ये अल्लाह के नबी मैं कभी आता हूं जंगल झाड़ी की वजह से, कीचड़ की वजह से गिर जाता हूं, अल्लाह के नबी, अल्लाह के नबी कभी सांप बिच्छू के डर से कभी आ नहीं पाता हूं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो क्या मैं अपने घर के अंदर नमाज पढ़ सकता हूं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी से कहा कि क्या तुम आजान की आवाज सुनते हो? कहा कि हां मैं सुनता हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही मुस्लिम और अबू दाऊद की रिवायत के अंदर फरमाया कि मां अजिदु लका रुख्सा, तुम्हारे लिए कोई रुख्सत नहीं पाता हूं, कोई तुम्हारे लिए रुख्सत नहीं पाता हूं कि तुम अपने घरों के अंदर नमाज पढ़ो। मेरे भाइयों, जब हजरत अब्दुल्लाह इब्न मक्तूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक सहाबी है, जन्नती है, और उसके बावजूद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर के इजाजत तलब करते हैं कि मैं दोनों आंखों के अंधे और घर से लाने वाला कोई नहीं है, सांप बिच्छू का डर है, जंगल है, कभी बारिश की वजह से आ नहीं पाता हूं, कीचड़ होता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं घर के अंदर नमाज पढ़ सकता हूं? अल्लाह के नबी ने उसको इजाजत नहीं दी, तो ऐसी सूरत में आपको कैसे रुखसत मिल गई? मेरे भाइयों, इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान ये कान खोल करके सुन ले कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन समी अन्निदा, अगर किसी ने आजान की आवाज सुन ली, फलम यातिही, और मस्जिद के अंदर आकर के हाजिर नहीं हुआ, जमात के अंदर शामिल नहीं हुआ, तो ऐसी सूरत में फला सला, उसकी नमाज नहीं होगी। अगर उसने नमाज जानबूझ करके छोड़ी, अजान सुनने के बाद जानबूझ करके शादी ब्याह में बैठे रहा, उन्होंने मेहमान आने की वजह से या किसी भी वजह से जानबूझ करके नमाज को कज़ा की, ऐसी सूरत में अल्लाह के नबी का फरमान सुनिए कि फला सला, उसकी नमाज नहीं होगी इल्ला मिन उज़्रिन, इल्ला कि कोई उज़्र हो। और उज़्र से मुराद हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सही इब्न माजा के रिवायत के अंदर फरमाते हैं कि अल खौफ अविल मरीद, या तो खौफ है, कर्फ्यू जारी है, अब कोई आदमी निकल नहीं सकता है, कोई बात नहीं है, और दूसरी बात अविल मरीद, या तो मरीज हो चुका है, और मरीज किस किस्म का? मामूली मरीज नहीं, बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, जैसा कि मैंने रिवायत बयान किया, हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में अगर कोई आदमी बीमार होता तो उसको चलने की ताकत नहीं होती थी, उसको चलने की ताकत नहीं होती थी कि पैर को उठा करके मस्जिद तक आए, बल्कि वो उनको दो सहाबी के कंधे पे हाथ रखते थे और उसको पैर को घसीटते हुए उनको मस्जिद में ला करके उसको जमात के साथ शामिल करते थे। वो सहाबा किराम थे मेरे भाइयों, उसके बावजूद नमाज से कोताही नहीं बरतते थे मेरे भाइयों। आज हम किस तरह से नमाजी हैं और किस तरह के हम नमाजी हैं मेरे भाइयों, सोच सकते हैं कि हम जानबूझ करके शादी ब्याह हो या रिश्तेदार आए घर के अंदर, या बेटी आए, दामाद आए, या मामूली से मामूली चीजों की वजह से नमाज को कज़ा कर देते हैं और कहते हैं कि हमारे रिश्तेदार हैं, हमको रिश्तेदारी निभाना भी है। तो क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रिश्तेदारी नहीं था? क्या सहाबा किराम का रिश्तेदारी नहीं था? सहाबा किराम ने कभी नमाज में कोताही क्यों नहीं बरती? मेरे भाइयों, कभी भी सहाबा किराम नमाज में कोताही नहीं बरती। अगर किसी ने कोताही बरती तो ऐसी सूरत में ये अल्लाह तबारक व तआला के ये आयत करीमा याद रखे और अपने दिमाग के अंदर, अपने दिमाग के दरीचे में इस बात को लिख ले कि अल्लाह तबारक व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर यह आयत करीमा नाजिल फरमाई कि इदा कुंता फीहिम फाक़मता लहुमुस सलात, ऐ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जंगें चल रही है, आधी फौज लेकर के आप नमाज अदा कीजिए और आधी फौज दुश्मन का मुकाबला करती रहे। जहां पे दुश्मन खून के प्यासे हो, जहां पे तलवारें चल रही है, जहां पे हार जीत का मसला है, वहां पे भी अल्लाह तबारक व तआला ने नमाज को कज़ा करने का हुक्म नहीं दिया है मेरे भाइयों। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि जंगें चल रही है, क्या हम नमाज को बाद में पढ़ ले, तो क्या नहीं होगी? अक्सर लोग फतवा दे देंगे कोई बात नहीं है, अल्लाह के लिए लड़ रहे हैं, अल्लाह ताला माफ करेगा, नमाज को बाद में कज़ा करके हम पढ़ लेंगे, अल्लाह ताला के लड़ रहे हैं, नमाज तो अल्लाह ही के लिए है, अल्लाह माफ करने वाला है। लेकिन यकीन जानिए अल्लाह तबारक व तआला ने ऐन हालात जंग में, जहां पे दुश्मन खून के प्यासे, जहां पे तलवारें चल रही है, जहां पे हार जीत का मसला है, वहां पे अल्लाह तबारक व तआला ने नमाज को माफ करार नहीं दिया, नमाज को कज़ा करने का हुक्म
हुक्म नहीं दिया। वहां पे अल्लाह के नबी को यह हुक्म हुआ कि इज़ा कुन्ता फ़ीहिम फ़अक़मता लहुमुस्सलात, ऐ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आधी फौज लीजिए और नमाज अदा कीजिए और आधी फौज दुश्मन का मुकाबला करती रहे। इसलिए मेरे भाइयों, जब ऐन हालत जंग की हालत में नमाज माफ ना हो, नमाज कज़ा करने का हुक्म ना हो, तो आप और हम कौन होते हैं कि जानबूझ करके हम नमाज को कज़ा कर दे और नमाज कज़ा करके हम सीना ठोक के कहते हैं कि हम पक्के मुसलमान हैं। यही नहीं मेरे भाइयों, आज उम्मत मुसलमान की यह हालत है कि आज जुमा 8 दिन नमाज पढ़ के अपने आप को पक्का सच्चा मुसलमान शुमार करते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कोई आदमी 5 वक्त की पाबंदी से नमाज पढ़े और फजर की नमाज में, इशा की नमाज में पीछे हो जाए तो उनको मुनाफिक समझा जाए। एक हफ्ता नमाज छोड़ के जुमा 8 दिन नमाज पढ़ के आप पक्के मुसलमान। और वो साहबी, वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के मुसलमान जो 5 वक्त की पाबंदी के साथ नमाज पढ़ के इशा की नमाज में और फजर की नमाज में पीछे हो जाए तो उनको कोई चारा नहीं, बल्कि उनको भी सही तिरमिज़ी की रिवायत है कि सहाबा किराम उसको मुनाफिकीन में शुमार करते थे। अब सोचिए कि वो उनको मुनाफिकीन के ज़ुमरे में शामिल करे और आप एक हफ्ता नमाज छोड़े यार, उसके बाद जुमा 8 दिन नमाज पढ़ के आप पक्के मुसलमान हैं। मेरे भाइयों, आज जो जुमा 8 दिन हम लोग नमाज पढ़ते हैं, क्यों नमाज जुमा के दिन ही क्यों एहतमाम करते हैं? और जुमा के दिन जो लोग आते हैं, वो जो नमाज पढ़ते हैं, क्या अल्लाह ताला के डर से आते हैं? हम जो कोई इबादत करते हैं अल्लाह ताला को राज़ी करने के लिए, अल्लाह के डर से, अल्लाह के खौफ से, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत के मुताबिक हम उस सुन्नत को अदा करते हैं या नमाज अदा करते हैं। लेकिन जो लोग जुमा 8 दिन नमाज पढ़ते हैं, 5 वक्त की पाबंदी से नमाज अदा नहीं करते, उससे मेरा सवाल यह है कि क्या आप अल्लाह ताला के डर से नमाज पढ़ने के लिए आए? नहीं, आप अल्लाह ताला के डर से नमाज पढ़ने के लिए नहीं आए, बल्कि आप समाज के डर से, माँ बाप के डर से, बीवी के डर से, बच्चों के डर से, या तो लोग क्या कहेंगे, या तो रस्म व रवाज बन चुका है कि चलो कोई बात नहीं है, आज जुमा का दिन है, नया कपड़ा पहनना है, आज चलो तातर लगा के जुमा मस्जिद में जाएंगे, थोड़ा सा लोगों से सलाम कर लेंगे। अगर ये हालत है और ये सोच है तो ऐसी सूरत में ऐसा आदमी परले दर्जे के मुनाफिकीन के जुमरे में शामिल है। क्योंकि वो साहबी, वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने के लोग, वो तो 5 वक्त की पाबंदी से नमाज पढ़ के अगर इशा की नमाज में या फजर की नमाज में पीछे हो जाए तो उनको मुनाफिक समझा जाए। और एक हफ्ता नमाज छोड़ के आपको कैसे हम पक्के सच्चे मुसलमान बने? बल्कि हदीस सही तिरमिज़ी की रिवायत के रोशनी में वो आदमी मुनाफिक के जुमरे में शामिल होगा। मेरे भाइयों, इसी तरीके से जो जुमा के दिन नमाज पढ़ने के लिए आते हैं, जुमा 8 दिन, उनसे सवाल यह है, अल्लाह ताला के डर से आते हैं? कहेंगे कि हाँ, अल्लाह ताला के डर से आता हूं मैं। तो मेरा सवाल यह है कि अल्लाह का डर सिर्फ जुमा के दिन आता है और जैसे ही नमाज पढ़ के आप मस्जिद से बाहर निकलते हैं तो अल्लाह का डर खत्म, अल्लाह का डर चला गया और एक हफ्ते के बाद फिर आएंगे और उसके बाद फिर अल्लाह का डर आएगा? किसने बतलाया? कौन सी किताब में पढ़े? किस मौलवी ने बतलाया? किसी ने नहीं बतलाया और ना ही किताब में किसी आलिम ने लिखा है, बल्कि शैतान ने यह पट्टी पढ़ाया है आपके अमाल को बर्बाद करने के लिए, आपको गुमराह करने के लिए कि नहीं, जुमा 8 दिन नमाज पढ़ लो, तुम पक्के मुसलमान हो। नहीं मेरे भाइयों, अगर किसी ने पाबंदी से नमाज नहीं पढ़ी तो ऐसी सूरत में वो आदमी मुनाफिकीन की ज़िम्मे में शामिल होगा। अगर मान लीजिए हम वज़ू करते हैं तो वज़ू करने के बाद हम जो पहला हाथ धोते हैं, अब धोने के बाद कुल्ली करते हैं, नाक में पानी देते हैं, उसके बाद चेहरा धोते हैं। अब चेहरा धोने के बाद थोड़ी देर रुक जाएं, 5 मिनट रुक जाएं, 10 मिनट रुक जाएं और उसके बाद जाकर के हम हाथ धोएंगे, वो क्या उसका वज़ू होगा? ये बदन सूख जाएगा। तसलसल ये वाजिबात में से है, तसलसल ना रहे तो उसका ये नहीं होगा। इसी तरीके से नमाज में अगर तसलसल ना रहे, ये क्योंकि ये कोई मुस्तहब अमल नहीं है, बल्कि ये अजीम तरीन अरकानों में से एक अहम तरीन रुकन है। इसको अगर कोई आदमी छोड़ता है और छोड़ के पढ़ता है तो फिर ऐसी सूरत में उस तरह से वज़ू करने के मानिंद है मेरे भाइयों। इसीलिए जो आदमी जुमा 8 दिन नमाज पढ़ने के लिए आता है, ये अल्लाह ताला के डर से नहीं आता है। नहीं तो मेरा सवाल यह है कि अल्लाह का डर से जुमा के दिन आता है और सिर्फ जुमा 8 दिन नमाज पढ़ के आप अपने आप को पक्के मुसलमान गए? ये शैतान ने आपको पट्टी पढ़ाया है, शैतान ने आपको बहकाने की कोशिश किया है मेरे भाइयों। इसीलिए नमाज में मुदावमत होनी चाहिए। और अल्लाह तबारक व तआला को सही बुखारी की रिवायत
रिवायत है कि इन्ना अहब्बल अअमाल इलल्लाहि अदवामुहा, अल्लाह तबारक व तआला को आमाल में सबसे महबूब तरीन आमाल वो है कि अदवामुहा, उसमें हमेशगी बरता जाए, मुसलसल किया जाए, कभी एक किए और कभी छोड़ दिए। अल्लाह तबारक व तआला को यह आमाल पसंद नहीं है मेरे भाइयों। चाहे वह इन कल्ला, अगरचे वो कम ही हो, यानी थोड़े से अमल करे लेकिन मुदावमत होनी चाहिए, हमेशगी होनी चाहिए। अगर है तो थोड़ा भी अमल करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला आपके अमल को कबूल फरमाएगा। इसी तरीके से मेरे भाइयों, ये तो नमाज में सुस्ती बरतने के ताल्लुक से चंद बातें थी कि अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे लोगों के लिए वाइल जहन्नम तैयार करके रखा है। जो नमाज में सुस्ती बरतेगा, गफलत करेगा, नमाज को अपने मन मुताबिक अदा करेगा, ऐसे लोगों के लिए अल्लाह ताला ने फवैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, ऐसे लोगों के लिए अल्लाह ताला ने वाइल जहन्नम तैयार करके रखा है। अब आइए आखिरी जो टॉपिक है वो मैं वाज़े चंद मिनट के अंदर वाज़े करके मैं अपनी बातें ख़त्म करूंगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन तरका सलात मुतअम्मिदन फ़क़द कफ़र, जो लोग नमाज नहीं पढ़ते उस ताल्लुक से चंद रिवायतें मैं बयान करूंगा। सबसे पहली रिवायत इस ताल्लुक से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो आदमी जानबूझकर के नमाज तर्क करे फ़क़द कफ़र, उसने कुफ्री किया। और एक रिवायत के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन तरका सलात मुतअम्मिदन फ़क़द कफ़र जिहारन, अगर किसी ने जानबूझ करके अगर नमाज छोड़ी फ़क़द कफ़र जिहारन, उसने खुल्लम खुल्ला कुफ्री किया। छुप करके नहीं बल्कि खुल्लम खुल्ला अलल ऐलान उसने कुफ्री किया। तो मालूम यह हुआ कि नमाज छोड़ना यह कुफ्र अमाल है। दूसरी बात, अल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया के अंदर अकीदा तौहीद के बाद किसी भी चीज को मेयार नहीं बनाया, कसौटी नहीं बनाया। अगर बनाया अकीदा तौहीद के बाद तो नमाज को बनाया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बैनल अब्द व बैनल कुफ्र अस्सलाह, अगर कोई आदमी ईमान और कुफ्र के दरमियान जो चीजें फर्क करती है वो है नमाज। बंदा नमाज पढ़ता है तो मुसलमान, और बंदा नमाज नहीं पढ़ता है तो मुसलमान नहीं हो सकता है। दो खेत है, जैसे खेत होता है, अब दो खेत के बीच में एक आली होता है। तो आली जो होता है, हम लोग अपनी भाषा में आली कहते हैं, आप लोग क्या कहते हैं पता नहीं। वो जो आली होता है एक ऊंचा जैसा, तो ये अब्दुल्ला का खेत है और ये अब्दुल रहमान का खेत है। तो ये बीच में जो आली है इससे तफरीक और इम्तियाज करता है कि ये खेत किसी और का है, ये खेत किसी और का है। इसी तरीके से अल्लाह ताला ने इस्लाम के अंदर ज़ाहिरी आमाल को, एक ज़ाहिरी आमाल को अल्लाह ताला ने तराजू बनाया, मेयार बनाया। और कौन से आमाल को? बैनल अब्द व बैनल कुफ्र अस्सलाह, नमाज को बनाया। नमाज ये मेयार है, ये कसौटी है, ये तराजू है। बंदा नमाज पढ़ता है तो मुसलमान, बंदा नमाज अगर नहीं पढ़ता है तो ऐसी सूरत में वो मुसलमान नहीं है मेरे भाइयों। तो इसी तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन तरका सलात मुतअम्मिदन फ़क़द कफ़र, अगर किसी ने जानबूझ करके नमाज छोड़ी तो उसने कुफ्री किया। तो पहली चीज ये साबित हुई कि उसने कुफ्री किया। दूसरी बात, नमाज अगर कोई आदमी तर्क करता है तो ये शिर्क है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर फरमाया कि मुनीबीन इलैहि वत्तक़ूहु व अक़ीमुस्सलाता वला तकूनु मिनल मुशरिकीन, ऐ दुनिया के लोगों अल्लाह की तरफ रुजू करो, अल्लाह से डरो, नमाज अदा करो, वातु ज़का और ज़कात अदा करो, वला तकूनु मिनल मुशरिकीन, और मुशरिकीन में से ना हो जाना। यानी नमाज छोड़ करके मुशरिकीन में से ना हो जाना। नमाज छोड़ोगे वला तकूनु मिनल मुशरिकीन तो तुम मुशरिकीन में से हो जाओगे। और अबू दाऊद की रिवायत के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो आदमी बेनमाजी है उनका हशर क़यामत के दिन फिरौन के साथ, हामान के साथ, शद्दाद के साथ, उबय इब्न खल्फ, दुनिया के सबसे बदतरीन काफिरों और मुशरिकों के साथ उसका हशर होगा। इसीलिए इस आयत करीमा मुनीबीन इलैहि वत्तक़ूहु व अक़ीमुस्सलाता वला तकूनु मिनल मुशरिकीन, इस आयत करीमा का तफसीर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने फरमान मुबारक में ये फरमाई कि तर्कुस सलात शिरकुन, नमाज छोड़ना ये शिर्क है। और तीसरी रिवायत के अंदर फरमाया कि मन तरका सलात मुता बैनल अब्द व बैनल कुफ्र अस्सलाह फमन तरका अमदन फ़क़द अशरका, ईमान और कुफ्र के दरमियान जो चीजें फर्क करती है वो है नमाज। बंदा नमाज छोड़ता है अगर जानबूझ करके फ़क़द अशरका, उसने शिर्क किया। तो इसे तमाम कुरानी आयत और अहदीस से यह मालूम होता है कि बंदा अगर नमाज मुसलसल तक करता है और उसी हालत में इंतकाल हो जाता है तो शिर्क की हालत में इंतकाल होता है, मुशरिक की हालत में उसका इंतकाल होता है। इसीलिए
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू दाऊद की रिवायत के अंदर फरमाया कि ऐसे लोगों का नमाजियों का हशर मुशरिकीन के साथ होगा। इसीलिए मुहद्दिसीन की एक जमात ने इस आयत करीमा को ला करके भी फिट किया है यहाँ पे कि मा काना लिन्नबी, गर्चे ये आयत करीमा किसी और चीजों के ताल्लुक से नाजिल हुआ था, लेकिन बाज मुहद्दिसीन ने इस आयत करीमा को इस बेनमाजियों के ताल्लुक से ला करके यहाँ पे फिट किया है और बतलाया है कि मा काना लिन्नबी, किसी नबी के लिए जायज नहीं है क्या वल्लज़ीना आमनू, और किसी मोमिनीन के लिए जायज नहीं है कि अन यस्तगफिरू लिल मुशरिकीन, कि किसी मोमिन और नबी के लिए जायज ही नहीं है कि उसके लिए मगफिरत की दुआ करे। अल्लाहुम्मा अगफिर li हय्यना व मय्यतना व शाहिदना व गायबना, ये दुआ करना किसी मोमिनीन के लिए और किसी नबी के लिए जायज ही नहीं है। अन यस्तगफिरू लिल मुशरिकीन, जिसकी शिर्क की हालत में इंतकाल हुआ है। तो अगर बेनमाजी एक आदमी सिरे से नमाज नहीं पढ़ता है, बिल्कुल नमाज नहीं पढ़ता है, और उसी बेनमाजी की हालत में उसका इंतकाल हो जाता है, तो शिर्क की हालत में इंतकाल होता है, मुशरिक की हालत में इंतकाल होता है, और ये आयत करीमा उसके लिए फिट आता है कि उसके लिए मगफिरत की दुआ जायज नहीं है। इसी तरीके से मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन तरका सलात फला दीन अला, जो आदमी जानबूझ करके नमाज तर्क करे, फला दीन, उसका दीन नहीं बचता है, उसका कोई मजहब नहीं है, उसका कोई धर्म नहीं है, उसका मजहब इस्लाम नहीं हो सकता है जो नमाज बिल्कुल सिरे से नहीं पढ़ता है। हजरत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि ला ईमान, उस आदमी का इस ईमान नहीं है जो आदमी नमाज नहीं पढ़ता है। इसलिए मेरे भाइयों, मालूम यह हुआ कि नमाज जो आदमी छोड़ता है वो परले दर्जे के पक्का मुनाफिक है। कोई आदमी नमाज छोड़ता है तो कुफ्री करता है, कोई आदमी नमाज छोड़ता है तो वो शिर्क करता है, कोई आदमी नमाज छोड़ता है उसका दीन नहीं बचता है, कोई आदमी नमाज पढ़ता है तो उसका ईमान नहीं बचता है। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसीलिए दो बातें मिंबर रसूल के ऊपर चढ़ के बड़ी जिम्मेदारी से फरमाई। और क्या फरमाया? फरमाया कि ला इस्लाम लिमन लम युसल्ली, उस आदमी का इस्लाम नहीं बचता है, लिमन लम युसल्ली, जो आदमी नमाज बिल्कुल नहीं पढ़ता है। और दूसरी रिवायत के अंदर हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मिंबर रसूल पे चढ़ करके ये फरमाया कि ला हद्दा फिल इस्लामी लिमन तरका सलात, जो आदमी नमाज को तर्क कर दे उसका इस्लाम में कोई हिस्सा ही नहीं है, कोई हिस्सा ही नहीं है। इसीलिए मुहद्दिसीन की एक जमात ने यह बतलाई है कि अगर कोई आदमी नमाज बिल्कुल सिरे से नहीं पढ़ता है तो ऐसा आदमी अगर मर जाए तो इस्लाम के अंदर कोई हिस्सा ही नहीं है। ऐसे आदमी के बारे में मुहद्दिसीन लिखते हैं, हदीस की शुरुआत की किताब में लिखा हुआ है। अल्लाह बिन बाज रहमतुल्लाह अलैह, शेख उथैमीन रहमतुल्लाह अलैह, अल्लामा नासिरुद्दीन अलबानी रहमतुल्लाह अलैह, शेख मुंजिद रहमतुल्लाह अलैह, इस तरह से 5 किबार सऊदी किबार उलमा का फतवा है और दीगर मुहद्दिसीन और दीगर हदीस के शुरुआत में ये बातें लिखी हुई है। और आप जाकर के ये जो मैं पढ़ रहा हूं इसको आप लिखिए, इंटरनेट पे आ जाएगा, फतवे की किताब में मौजूद है कि अगर कोई बेनमाजी की हालत में मुसलसल बेनमाजी है और उसी हालत में इंतकाल हो गया है और इंतकाल हो जाए, ला युगस्सल, उसको गुस्ल ना दो, वला युकफन, उसको कफन ना दो, वला युदफन फी मकाबिरिल मुस्लिमीन, और मुसलमानों की कब्रिस्तान में भी उसको दफन ना करो। मेरे भाइयों, इसलिए नमाज में ये गफलत और सुस्ती करना ये भी गुनाह अजीम है। और जो आदमी नमाज छोड़ दे, ला हद्दा फिल इस्लाम लिमन तरका सलात, उस आदमी के इस्लाम के अंदर कोई हिस्सा ही नहीं है। मेरे भाइयों, 2 आखिरी रिवायत मैं आपके सामने बयान कर दूं और बहुत अहम तरीन रिवायत है, जरा गौर से सुनिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी के अंदर एक मरतबा तशरीफ फरमा थे। एक सहाबी आकर के, उसका नाम था हजरत बुस्र इब्ने मिहजन रजी अल्लाह ताला अन्हु, वह आकर के बैठ जाते हैं मस्जिद नबवी के अंदर। अल्लाह उस वक्त आज़ान हो जाती है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ने के लिए चले जाते हैं। नमाज पढ़ने के बाद आते हैं तो वो सहाबी वहीं पे बैठे हुए है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी से कहा कि मा मना आका अन तुसल्ली मान नास, तुमने हमारे साथ नमाज क्यों नहीं पढ़ी? हमने तो नमाज पढ़ी, तुमने नमाज क्यों नहीं पढ़ी? अलस्ता बिरजुलिन मुस्लिम, क्या तुम मुसलमान नहीं हो कि तुमने हमारे साथ नमाज नहीं पढ़ी?
इसका मतलब यह है कि अलस्ता बिराजुलिन मुस्लिम, क्या तुम मुसलमान नहीं हो? इसका मतलब यह है कि जो नमाज नहीं पढ़ता है वो मुसलमान नहीं हो सकता है मेरे भाइयों। इसीलिए अल्लाह के नबी ने उस सहाबी से कहा, आज अगर किसी भाई से, किसी चचा से, किसी से बोला जाए, भाई क्या आप मुसलमान नहीं है? क्या आपने मगरिब की नमाज, आपने इशा की नमाज नहीं पढ़ी? आप देखिए मौलवी के ऊपर किस तरह से फायर हो जाते, किस तरह से गुस्से के मारे वो लान तान करना शुरू कर देंगे आलिम उलमा को। बात यह है कि अल्लाह के नबी उस सहाबी से कहे जो सहाबी जन्नती है, जो सहाबी चंद दिन पहले इस्लाम कबूल किए और अल्लाह के नबी के पास आए और अल्लाह के नबी के सामने बैठे रह गए और नमाज पढ़ने के लिए नहीं गए, उस सहाबी से अल्लाह के नबी ने फरमाया, अलस्ता बिराजुलिन मुस्लिम, क्या तुम मुसलमान नहीं हो कि तुमने हमारे साथ नमाज नहीं पढ़ी? वो सहाबी कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपने इलाके से नमाज पढ़ के आया हूं, मैं अपने गांव से नमाज पढ़ के आया हूं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे सहाबी, तुम यहां पे भी नमाज पढ़ लेते, यहां पे अगर नमाज पढ़ लेते तो तुम्हारी पहली नमाज फर्ज हो जाती और ये नमाज तुम्हारे लिए नफल हो जाती। बहुत अच्छी बात थी, लेकिन उस सहाबी को जानकारी नहीं था। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी बातें फरमाई कि मां मना कान तुसल्ली माना, तुमने हमारे साथ नमाज क्यों नहीं पढ़ी? अलस्ता बिरजुलिन मुस्लिम, क्या तुम मुसलमान नहीं हो कि तुमने हमारे साथ नमाज नहीं पढ़ी? इसका मतलब इस हदीस से अगर खुल्लम खुल्ला आप समझना चाहे कि अलस्ता बिरजुलिन मुस्लिम, क्या तुम मुसलमान नहीं हो, इसका खुल्लम खुल्ला वाज़े मतलब यह है कि जो बंदा नमाज नहीं पढ़ता है वो मुसलमान नहीं हो सकता है। इसीलिए इसी तरह से आखिरी रिवायत यह है, हजरत उबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि औसाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें चंद बातों की वसीयत फरमाई। उसमें से एक बात की वसीयत फरमाई कि ला तुशरिक बिल्लाहि शैयन, अल्लाह की ज़ात के साथ किसी को शरीक ना करना। व इन कुतिलता औ हुर्रिकता, ऐ मुआज, अगर तुमको जलते हुए अंगारे में डाल दिया जाए या तो तुमको काट करके बोटी बोटी कर दिया जाए, लेकिन जलते हुए अंगारे में कूद जाना या तो अपने जिस्म के बोटी बोटी कर देना, अल्लाह के जात के साथ किसी को शरीक ना करना। और दूसरी चीज बयान किया, ये जो यहां पे शिर्क के साथ इस चीज को बयान करने का मतलब क्या है कि नमाज ना छोड़ना, इसका मतलब यह है कि जिस तरह से शिर्क करने से आमाल बर्बाद हो जाता है वो इस्लाम के अंदर नहीं रहता है। अगर एक आदमी की जिंदगी में नमाज नहीं रहती है तो उसका आमाल भी बर्बाद हो जाता है। और मैंने पहले ही आपको बतलाया था कि इदा सलाहत, अगर आपकी जिंदगी में नमाज है तो सलाह लहु साइरु अमली, आपका सारा अमल सही है। व इदा फसदत, आपकी जिंदगी में नमाज नहीं है तो फसद लहु साइरु अमली, आपका सारा अमल गारत है। तो मेरे भाइयों, कहने का मतलब यह है कि शिर्क करने से जिस तरह से अमल बर्बाद हो जाता है उसी तो इस्लाम से खारिज हो जाता है। लेकिन अगर कोई आदमी इस्लाम के अंदर अगर हो लेकिन नमाज बिल्कुल सिरे से ना पढ़े तो उसका कोई भी अमल काबिल कबूल नहीं होता है। गरचे वो क्या है हम हुक्म नहीं लगाएंगे, लेकिन अल्लाह जाने। लेकिन बात यह है कि उसका दूसरा अमल भी बर्बाद हो जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे फरमाया कि मन तरका सलाता मुतअम्मिदन फकद खरजा अनिल मिल्लाह, जो आदमी जानबूझ करके फर्ज नमाज को तर्क कर दे, फकद खरजा, वो निकल गया। कहां से निकल गया? अनिल मिल्ला, इस्लाम से निकल गया। अनिल मिल्लत यानी हमारे मिल्लत से निकल गया, हमारे मजहब से निकल गया। एक आदमी जब मरता है तो जब हम कब्र में ले जाते हैं और उसको सुलाते हैं तो कहते हैं बिस्मिल्लाहि व अला मिल्लते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहते कि नहीं कहते? हम ये कहते हैं रसूल के मिल्लत के ऊपर रखते। ऐसे बेनमाजी को जो आदमी जिंदगी में कभी नमाज नहीं पढ़ी, अल्लाह के नबी फरमाए कि हमारे मिल्लत के ऊपर नहीं है। अल्लाह के नबी आपको आवाज दे कि फकद खरजा अनिल मिल्ला, ये मेरा बंदा, ये मेरा उम्मती, ये मेरा बंदा फकद खरजा अनिल मिल्ला, ये मेरे उम्मत से निकल चुका है, मेरे मजहब से निकल चुका है। आप जाकर के कब्र में उसको कहते हैं अल्लाह के नबी नहीं नहीं, आपके मिल्लत के ऊपर ही हम इसको रखेंगे। कैसे उसके मिल्लत के ऊपर आप रखेंगे? जो आदमी अपनी जिंदगी में नमाज को जरूरी नहीं समझा, नमाज नहीं पढ़ा, जिसकी जिंदगी में नमाज नहीं रही, तो मरने के बाद कैसे उसके लिए नमाज जरूरी हो जाता है? मेरे भाइयों, सोचने वाली बात है। जिंदगी में कभी भी एहसास नहीं हुआ, जिंदगी में नमाज नहीं पढ़ी, तो मरने के बाद उस आदमी की नमाज कैसे पढ़ी जाएगी? इसलिए मेरे भाइयों समझ जाइए, मुहद्दिसी ने ऐसे ही नहीं फतवा ही लगाया और ऐसे ही नहीं बतलाया कि ला युगस्सल, अगर बेनमाजी है
तो गुस्ल ना दिया जाए, वला युकफन, उसको कफन ना दिया जाए, वला युदफन फी मकाबिरिल मुस्लिमीन, और मुसलमानों के कब्रिस्तान में भी दफन ना किया जाए। आज उम्मत मुस्लिमा की जो हालत है, और 80% 70% लोग आज जो बेनमाजी है मेरे भाइयों, इसका जिम्मेदार कुछ हम लोग भी हैं। जो लोग हमारे अक्सर हमारे इधर सरदार मंडल होता है, आपके वहाँ सदर सेक्रेटरी और क्या और होते हैं, तो ये लोग, इनकी भी जिम्मेदारी है, इनकी जिम्मेदारी है। आज हम लोग जितने भी यहाँ पे बाअसर लोग बैठे हुए हैं, सबकी जिम्मेदारी है कि कम अज कम नमाज को मामले ना समझे। जो लोग अकीदा तौहीद से दूर है, जो लोग शिर्क बिदात से दूर है, जो लोग नमाज से दूर है, उसको समझाने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। अगर मर जाता है तो ऐसी सूरत में, अगर किसी ने नहीं समझाया तो फिर ऐसी सूरत में कल अल्लाह ताला के सामने जाकर के हुज्जत पेश करेगा कि अब्दुल वाजिद भाई का घर हमारा पड़ोसी था लेकिन हमको आकर के कभी नहीं समझाया, या अब्दुल्ला का घर हमारे पड़ोसी था लेकिन कभी हमको आकर के नहीं बतलाया, या अगर समझाया होता, जहन्नम से डराया होता, तो हम भी नमाजी बन जाते। कल क्या जवाब देंगे अल्लाह ताला के सामने मेरे भाइयों? तो हम अपना फरीजा कम अज कम अंजाम दे, वो नमाजी बने या ना बने, इसका आपके ऊपर जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन आपको अपनी जिम्मेदारी निभाना है। वलस्ता अलैहिम बिमुसैतिर, आप किसी के ऊपर दरोगा नहीं है, लेकिन आपको अपना पैगाम पहुंचा के रखना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को पहुंचाना है। मेरे भाइयों, आखिरी हदीस बयान करके मैं अपनी बातें खत्म करूंगा। अबू दाऊद सही तिरमिज़ी के हवाले से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मा मिन कौमिन युअमलु फीहिम बिल मआसी, अगर कुछ लोग ऐसे समाज के अंदर जीता है जहां पे कुछ लोग कुरान और सुन्नत के मुताबिक अमल नहीं करता है, या कुरान और सुन्नत के खिलाफ काम करता है, और यक़दिरून अला अन युग़य्यिरू, आपके पास ताकत है, क्या आप उसको मार सकते, आप उसको बोल सकते, आप उसको समझा सकते, उसके बावजूद आप समझाते नहीं है, अला ला युग़य्यिरू अलैहि, आप बदलने की कोशिश नहीं करते, उसको समझाने की कोशिश नहीं करते, इल्ला असाबहुमुल्लाहु मिन क़ब्ल अन यमूतू, अल्लाह तबारक व तआला आपको उस वक्त तक मौत नहीं देगा जब तक कि आपको अजाब के अंदर मुब्तला ना कर दे। अल्लाह तबारक व तआला हमें इस अजाब से बचाए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ गो हूँ, अल्लाह तबारक व तआला हमें नमाज में सुस्ती बरतने, नमाज में गफलत बरतने से अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को महफूज रखे। अल्लाह तबारक व तआला बेनमाजी को कम से कम समझाने की अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमसे जो भी दानिस्ता नादानिस्ता तौर पर नमाज के ताल्लुक से जो भी गुनाह खताएं हुई है, अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमा कर अल्लाह हमें नमाज का पाबंद बना दे। अल्लाह हमें इस्लाम और कुरान और सुन्नत के मुताबिक चलने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह ताला हमें जब तक हम इस दुनिया के अंदर जिंदा रहें, इस्लाम और तौहीद की हालत में जिंदा रहें, जब हमारा खातिमा हो तो इस्लाम और तौहीद की हालत में हो। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।